Okay, shall we start the class? Yes, sir, we can. Total, I think 21 students are connected. Okay, now I'm coming to the our class today. Pratik, can you drop a message in group 10:40? Okay, 10:40 I will not allow for joining. So for joining, I already mentioned again. आपने मतलब ड्रॉप कर दिया ना मैसेज? हाँ सर, कर दिया. Okay, ठीक है. Okay. Actually, once I present a screen, then how to I not find out the anyone joined to. If the someone message to my WhatsApp number, then I will add on. Okay. Today we are going to start another new topic, which is the unit 4 is a theodolite. Have you heard about this particular instrument? This is a one of type of the instruments, serving instruments. Based on the serving instrument, the serving is classified many more. First is a chain serving, compass serving, theodolite serving, tachymetric serving, total station serving. तो नॉर्मली उसमें से एक फर्स्ट टाइप्स ऑफ द सर्विंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सर्विंग जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग. ओके, जो 4 यूनिट्स है आपके बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है. इसमें मोस्टली क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस है. मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ दोस्ती करोगे, मींस दोस्ती कैसे कि इसके हर एक पार्ट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन रहेगी, यू कैन इजीली मेजर दी on field data, or you can also write on the particular any parts of these particular instruments. Okay, तो फर्स्टली मैं थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा नॉर्मली थियोडोलाइट का. फिर उसके बाद में इसके पार्ट्स क्या है, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होता है, और नंबर ऑफ जो रिलेशन हैं इनके बीच में कि सेंटरिंग क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, ट्रांजिटिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या है, ट्राइपोड जो है, लेवलिंग जो है वो क्या है. तो ये पर्टिकुलर जो टर्म्स जो यूज होगी वो भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पर्टिकुलर सबसे पहले कि यहां तक अपन ने एक कंपास ट्रैवर्सिंग या फिर एंगुलर जो मेजरमेंट लिया था अपन, एंगुलर मेजरमेंट, वहां तक क्या था कि वी हैव फर्स्ट कंसीडर ए मेरिडियन. मींस अपने को एक रेफरेंस लाइन और एक रेफरेंस पर्टिकुलर आइदर द ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ. तो आपको एक रेफरेंस लाइन तो चाहिए या मेरिडियन चाहिए, और इस रेफरेंस लाइन से वी फाइंड आउट द फर्स्ट बेयरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन. ओके, देन another line for if I'm drawing is particular C. This angle will be θ1, this angle will be θ2. Now coming to our point of interest is finding the angle A. That means we only want to the in the serving are the angle between the two lines or angle all of the in the traverse. So angle जो A है we find out the θ2 minus θ1. Okay, so once you find the bearing of particular line AB and AC, then उन दोनों डिफरेंस जो bearing है θ2 और θ1 में से उसका डिफरेंस जो होगा वो होगा आपका एंगल. तो दैट मींस एक तो आपको मेजरमेंट करना है 2, और मेजरमेंट करने के बाद में आपको उसमें से ऑफिस वर्क मींस आपको सब्सट्रैक्ट भी करना है. फिर ये जो कंपास जो है फॉर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट, इट ओनली मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल. It can be measure vertical angle or not. Yes, anyone? कि normally compass जो है it can be measure vertical angle or not.
It can measure, sir. It can measure vertical angle. That means your instrument is here and you sight a particular building. Okay, building, chimney, and any power plant topmost point. Okay, this will be is a horizontal line. Horizontal line means it is a parallel to the horizontal plane. Now coming to the point interest is finding this angle. This angle means in the vertical plane. This will be क्या है, ये आपका अभी vertical plane है और आपको ये जो angle जो है थीटा, it can be measured by the help of compass or not. Yes, sir, it can be measured by the compass. Sir, there is an instrument we learned before, sir. In this, it have a compass and another part by which we find the inclined angle. In the compass, we can measure either vertical angle also. What will be compass? Compass are the two types. One is the prismatic compass. Second is a surveyor compass based on the its measurement in the whole circle bearing and quadrantal bearing. तो नॉर्मली कंपास जो है तो सबसे पहले कंपास में क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एक नीडल होगी. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वहां से अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैग्नेटिक नीडल है तो नॉर्मली क्या मैग्नेटिक नीडल इट कैन बी मेजर वर्टिकल एंगल और नॉट. दैट मींस अगर अर्थ का नॉर्मली नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो नॉर्मली जो मैग्नेटिक नॉर्थ है तो इट कैन मेजर वर्टिकल एंगल और इट ओनली मेजर फॉर हॉरिजॉन्टल एंगल. So by the north and the south, it only measures a horizontal angle. That means कि the limitation of the compass traversing या फिर compass instrument, it cannot measure vertical angle because it only aligned for particular horizontal plane. That means ये आपका अगर मैं horizontal plane में कैसे कि if I consider this particular plane horizontal, तो आपका जो compass जो है are situated in the horizontal plane rather than the vertical plane. अगर ये vertical plane है तो compass को आप ऐसे mounted नहीं कर सकते क्योंकि you have only, ये compass में क्या होता है नॉर्मली आपका मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल होने के वजह से तो वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट की आप बेयरिंग मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे आपका ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ मींस फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर किसी लाइन की यू कैन ओनली मेजर द बियरिंग. ओके, और वी कंप्यूट द एंगल बिटवीन टू लाइंस मींस एंगल एट पॉइंट ए. अपन उससे मेजर नहीं करते, वी फाइंड आउट मींस डिटरमाइन करते हैं अपन. ओके, मेजर ओनली फॉर थीटा 1 और थीटा 2. थीटा 1 और थीटा 2 क्या आर द बियरिंग. एम आई राइट? Yes, sir. मतलब यहाँ तक क्लियर. मतलब अपना ये जो पास जो यूनिट 3 था उसके अंदर एक एंगुलर मेजरमेंट में मैंने आपको कंपास ट्रैवर्सिंग बताया था. कंपास ट्रैवर्सिंग में जो कंपास है उसकी लिमिटेशन क्या है बेस्ड ऑन दी, तो मोस्टली विथ रेस्पेक्ट टू द मेरिडियन वी ओनली मेजर द बियरिंग देन फाइंड आउट या डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू लाइंस. द प्रीवियस क्लास वीडियो लेक्चर जो अपना था गूगल मीट क्लास उसमें वी ऑलरेडी डिस्कस. ओके, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये नॉर्मली आपका कंपास जो ट्रैवर्सिंग है उसमें इतना लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट मेजर दी वर्टिकल एंगल. एंड सेकंड लिमिटेशन है ऑफ दी कंपास ट्रैवर्सिंग. ये कंपास जो सर्विंग है उसमें है लिमिटेशन ऑफ दी, एक तो फर्स्ट कि वर्टिकल एंगल्स वी कैन नॉट मेजर फ्रॉम दी बाय द हेल्प ऑफ कंपास. एंड सेकंड इज एक्यूरेसी.
जो एक्यूरेसी जो टर्म्स है मींस अगर आपको फॉर फाइंडिंग आउट द एंगल कंपास बाय द हेल्प ऑफ द कंपास इंस्ट्रूमेंट और आपको फाइंड आउट करना एंगल, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द बियरिंग्स। तो बियरिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको लेट्स अज्यूम लीस्ट काउंट आपका जो है वो 10 सेकेंड आपको मेजर करना है कि एंगल जो है वो कम से कम प्रिसाइज हो 10 सेकेंड तक। दैट मीन्स अगर 30 डिग्री 40 मिनट तो वो 10 सेकेंड जो है उसका लीस्ट काउंट हो। तो ये जो लीस्ट एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो कंपास सर्विंग के अकॉर्डिंग होता है। तो नॉर्मली ये भी इसकी सेकंड लिमिटेशन है फॉर द प्रिसाइज सर्विंग मींस प्रिसाइज अगर आपको साइट लोकेशन या फिर पर्टिकुलर आपको एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट और आपको ये सर्विंग करना हो तो उसमें कंपास जो है वो इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रिफरेबल। ओके, तो ये सारी जो लिमिटेशन है इसको काउंटर करने के लिए देयर विल बी एक इंस्ट्रूमेंट which are used for finding out the both horizontal angle and vertical angle which called the theodolite. ओके, और ये पर्टिकुलर जो सिस्टम जिसमें थियोडोलाइट यूज करते हैं उसको थियोडोलाइट सर्विंग कहते हैं। मींस अगर आपने कोई भी सर्विंग किया मींस अगर आपने ट्रेवर्स किया है और उसके एंगुलर मेजरमेंट जो है बाय द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो उसको कौन सी सर्विंग बोलेंगे? थियोडोलाइट सर्विंग। ओके, अब पर्टिकुलर जो थियोडोलाइट है वो फर्स्ट राइट साइड में आपका एक ग्रीन फिगर दे रखा होगा। इट कैन बी क्लियर विजिबल और नॉट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Visible. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले थियोडोलाइट को ध्यान से देखना कि मोस्टली जो थियोडोलाइट होता है उसमें वी कैन मेजर दी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंगल। अब हॉरिजॉन्टल एंगल ध्यान से देखना, दिस विल बी ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड। Object 1, object second, and you have a theodolite at station. Okay, now coming to the means आपकी लोकेशन क्या है इस पर्टिकुलर स्टेशन पे और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को पर्टिकुलर इसके बीच में एंगल्स निकालना है। तो एंगल फर्स्ट एंगल होगा हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल कब होगा कि फर्स्ट ये आपका पूरा प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल में लाई करे। ओके, दैट मींस सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट 1 साइड करना है एंड ऑब्जेक्ट 2 साइड करना है। जो मैं ये साइड जो वर्ड बोल रहा हूं बार बार इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आई साइड से आप पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो पर्टिकुलर इसको सर्विंग बोलते हैं साइट करना। ओके, और ये जो लाइन जो ड्रॉ होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट क्या है कि वी फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है दैट मींस कि वो प्लेन में इन दोनों के बीच में कितना एंगल सब्सट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट इज वर्टिकल कि वर्टिकल एंगल कैसा। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था थियोडोलाइट में इट आल्सो मेजर दी वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल में ये सेम जो डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ होगा। लेट्स अज्यूम दिस ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट आर elevated lesser than object 1। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लाइन जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दैट मींस ये जो लाइन है आपकी ग्राउंड के पैरेलल है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट क्या है, अब आपको क्या करना है वर्टिकल एंगल मेजर करना है
फॉर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो इस लाइन से ऑब्जेक्ट 1 जो है वो अबोव द लाइन है। ओके, तो ये एंगल हो गया इसका एलिवेशन एंगल। ओके, और जो ऑब्जेक्ट सेकंड जो है वो आर दी बिलो दी हॉरिजेंटल प्लेन। तो ये हो गया एंगल थीटा 2 इज अ डिप्रेशन एंगल, और ये है आपका एलिवेशन एंगल। ओके, तो फर्स्ट थियोडोलाइट मेजर दी, पहली बात आपको याद रखनी है कि ये इट कैन मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन रेफरेंस लाइन, किसी भी पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू दी सेकंड, क्या है, वर्टिकल एंगल मेजर करता है। अब पर्टिकुलर ये वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, और उन पार्ट्स का क्या रोल है। अगर इसकी एक एक पार्ट्स के बारे में आपको पता चल गया तो यू कैन इजिली मेजर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑन फील्ड, और यू कैन आल्सो राइट ऑन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन या पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जामिनेशन अबाउट द थियोडोलाइट। ओके, यहां तक क्लियर? कुछ ब्रीफ आइडिया होगा थियोडोलाइट का? ओके, अब पर्टिकुलर जो थियोडोलाइट है अपना इंस्ट्रूमेंट, वो टाइप्स कितने हैं, एक तो, और उसकी अगर लिखा हुआ है साइज ऑफ थियोडोलाइट कैसे डिनोट करते हैं, और सेकंड सबसे थर्ड पॉइंट होगा वो होगा यूज ऑफ थियोडोलाइट। ओके, इन तीन चीजों को पहले डिस्कस करने के बाद में मैं पार्ट्स, जो थियोडोलाइट के जो पार्ट्स हैं, मींस थियोडोलाइट का आज ऑपरेशन करेंगे, मींस उसको सारा डिसमेंटल करना है, थियोडोलाइट को पूरा डिसमेंटल करना है विद द बाय द हेल्प ऑफ फिगर और डेफिनेशन। मींस उसकी पर्टिकुलर जो पार्ट्स है उसकी क्या पर्टिकुलर रोल है इसमें, थियोडोलाइट में कैसे मेजरमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए कौन सी प्लेट्स यूज करते हैं, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए कैसे मैकेनिज्म डेवलप होती है। तो फर्स्ट थियोडोलाइट जो है बेस्ड ऑन द प्रिसीजन, मींस प्रिसाइज जो वर्क है, प्रिसीजन वर्क, फर्स्ट इज साथ साथ में लिखता रहना, या फिर मेरे को अगर स्क्रीनशॉट, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे को बोल देना उसमें। तो वर्नियर थियोडोलाइट, कौन बता सकता है जो वर्नियर जो मैंने लिखा है कि वर्नियर थियोडोलाइट, दैट मींस वी हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द वर्नियर मेजरमेंट और वर्नियर स्केल। पता है वर्नियर के बारे में, क्या है वर्नियर? अरे ये मैन स्केल में if you want to the lesser value or least count of particular instrument, use the vernier स्केल में मैंने पढ़ाया था ना वर्नियर के बारे में। यस सर। तो वर्नियर जो है, ओके, तो सबसे पहले वर्नियर जो थियोडोलाइट है वो मोस्टली एक तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है फॉर स्मॉल सर्वे वर्क में, जैसे इंस्टीट्यूट लेवल पे, अपने जो इंस्टीट्यूट है कॉलेज के लेवल पे भी, वहां पे भी सर्विंग लैब में वर्नियर थियोडोलाइट जो यूज होता है मोस्टली वाइडली। और इसका रीजन क्या है कि तो ये बहुत ही आसान है, मींस इसको ऑपरेटिंग करना बहुत इजीनेस है, और इसका पर्टिकुलर जो लीस्ट काउंट है कैन बी 10 सेकेंड, और मोस्ट वाइडली जो यूज होता है वो होता है 10-20 सेकेंड। मींस ये आपका पर्टिकुलर दो लाइन के बीच में अगर एंगल जो है वो मिनिमम जो एंगल है पर्टिकुलर वो 20 सेकेंड मेजर कर सकता है। मींस अगर आपको पर्टिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट को साइड कर रहे हो, तो इसका मिनिमम जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट जो है वो होगा 20 सेकेंड। मींस
इसकी जो रीडिंग होगी ऑलवेज शोइंग एज 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, और अगर 60 सेकेंड होगा तो उसमें एड ऑन हो जाएगा 1 मिनट। ओके, तो एक तो 1 ईयर जो थोड़ोलाइट है, एक तो जो ऑपरेशनल जो मींस बहुत ही इजीनेस होता है, ऑपरेटिंग बहुत इजी एज कंपेयर टू अदर जो थोड़ोलाइट अपन पढ़ेंगे उससे, और मोस्ट वाइडली यूज होता है, क्योंकि अगर जितना अच्छे से अगर आप इजीनेस ऑपरेट कर सकते हो तो इसको वाइडली यूज करेंगे। और इसका जो लीस्ट काउंट है वो मे बी 10 सेकेंड हो सकता है, और मोस्ट वाइडली जो जनरली वैल्यू है लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर थोड़ोलाइट विच इज 20 सेकेंड। ओके, जो अभी फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें जो फिगर है ये वाला, ये आपका 1 ईयर थोड़ोलाइट है। ओके, now coming to the second is micrometer, micropic or optical theodolite. Up to increase the preciseness of work or angles using micrometer. Okay, तो इसमें particular you can measure 1 second least count of particular this theodolite. तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, ये ओनली सिलेबस फॉर पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो है 1 ईयर थोड़ोलाइट। थर्ड वन है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थोड़ोलाइट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थोड़ोलाइट जो है वो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। इसको अगर इसके साथ में अगर ईडीएम जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है ईडीएम, वो अगर एड ऑन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल स्टेशन। ये आपकी आई थिंक 5th यूनिट है टोटल स्टेशन, ये अपने सिलेबस में है। नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी 5th या 6th नंबर की यूनिट है, वो है टोटल स्टेशन। ओके, तो दे आर दी 3 टाइप्स ऑफ द थोड़ोलाइट बेस्ड ऑन द प्रिसीजन वर्क, और मोस्ट वाइडली जो यूज होता है वो है 1 ईयर थोड़ोलाइट, सेकंड इज माइक्रोमीटर और ऑप्टिकल थोड़ोलाइट, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थोड़ोलाइट ईडीएम। अगर इसके साथ में अगर ईडीएम मींस अगर आप डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हो, ये तो मेजर करता है फॉर द एनालॉग डिजिटल जो न्यूमेरिकल एनालिसिस करके उसके द्वारा एंगल जो है वो मेजर होता है। और इसके साथ में अगर आपने डिस्टेंस भी मेजर कर दिया बाय द हेल्प ऑफ ईडीएम, इट कॉल्ड द टोटल स्टेशन। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर? Yes, sir. Okay. Now coming to the second is size of the theodolite. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मतलब मैं नॉर्मली अगर अपनी इंटरेक्टिव क्लास होती तो मैं इसको बाय द हेल्प ऑफ जो फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है क्लास में लाके इसको समझाता, तो उसके हर एक पार्ट्स को आप बिल्कुल एकदम मतलब मैंने अपने मेरे लेवल में जब मैं बैचलर डिग्री में था, मींस मेरे इंजीनियरिंग में, तो उस टाइम हमारे मतलब प्रैक्टिकल इस टाइप से होते थे कि थोड़ोलाइट को अपने आई पे आंखें बंद करके और उसके बाद में पार्ट्स को पहचानना होता था कि आप ये जो पार्ट्स है इसको क्या कहते हैं और इसका क्या रोल है। ओके, तो वो तभी है जैसे फैमिलियर, जितना आप ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे इस इंस्ट्रूमेंट से, वो ज्यादा आप वर्क करोगे उसके ऊपर, मेजरमेंट करोगे फील्ड में, बार बार प्रैक्टिस करोगे कि इस पर्टिकुलर जो पार्ट्स है इसका क्या रोल है इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। तो सेकंड अभी पॉइंट पढ़ते हैं अपन, साइज ऑफ थोड़ोलाइट। तो साइज ऑफ थोड़ोलाइट का मीनिंग होता है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 20 सेंटीमीटर थोड़ोलाइट, तो इसका मीनिंग होता है कि 20 सेंटीमीटर आर दी graduated circle of the diameter of the graduated circle of the lower plate। ओके, अभी के लिए ये लाइन लिख देना। इसके बाद मैंने इसके बाद थोड़ोलाइट का अपन वो जो ऑपरेशन करेंगे मीन सारे जो पार्ट्स खोलेंगे उसमें बताऊंगा मैं कि लोअर प्लेट क्या होता है। और
लोअर प्लेट का मीन्स सबसे नीचे जो प्लेट लगती है वो, ओके। उसके ऊपर जो ये मार्किंग जो सर्किल है जहां पे सारी डायमेंशन जो लिखी रहती है, जिसके ऊपर मार्किंग मीन्स यहाँ से 0 डिग्री, फिर यहाँ 90 डिग्री, फिर 180, 270, वापिस 360 आ जाएगा। यहाँ पे सारा मार्किंग है, ओके। तो ये जो सर्कल जो है इसका जो डायामीटर डी, ये डायामीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसको बोलते हैं साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, साइज ऑफ थियोडोलाइट। मीन्स अगर आप परचेज करना चाहोगे तो आपको जो सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा कि सर आपकी जो साइज ऑफ थियोडोलाइट है वो कितनी रिक्वायर्ड है। इट मे बी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो जनरली मार्केट में 8 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड जो सर्कल है ऑफ द लोअर प्लेट और साइज ऑफ थियोडोलाइट अवेलेबल है, ओके। तो ये जनरली वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर साइज ऑफ थियोडोलाइट से क्या इंटररिलेटेड है, मींस साइज ऑफ थियोडोलाइट कैसे डिफाइंड होती है। तो वो डिफाइन होती है डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ द लोअर प्लेट। ये है इसका लोअर प्लेट, अपर प्लेट भी होती है, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तीसरा पॉइंट है यूजेस ऑफ थियोडोलाइट, कि ये इतना वाइडली यूज होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, और इसकी जो एप्लीकेशन है सर्विंग में वो पर्टिकुलर क्या क्या अपन मेजर कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट नोट डाउन करो आप, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। फर्स्ट है, एक तो क्या था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. First, yes. First, measuring horizontal and vertical angle. Okay. सबसे मीन्स थियोडोलाइट का आने का रीजन यही था कि कंपास सर्वे में लिमिटेड था कि उसमें वर्टिकल एंगल मेजर नहीं कर सकते, और प्रिसाइजनेस जो था वो एज कंपेयर टू थियोडोलाइट इज लेसर। सेकंड इज लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन ए लाइन। लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन ए लाइन कैसे? जैसे आपने एक कुछ वर्क किया, आपने 1 ईयर बिफोर ए और बी पॉइंट आपने मार्क कर दिया। नाउ कमिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ द वर्क, वी आर इंटरेस्टेड लोकेट ए पॉइंट सी ऑन ए पर्टिकुलर लाइन। तो इसमें क्या करते हैं, Hello, sir. Actually, sir, we are not getting your voice. वो है प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस। मींस अगर आपका जो आपने जो सर्वे कर रखा था, मान लो ये ट्रेवर्स, अब आप इस ट्रेवर्स को एक्सटेंशन करना चाहते हो ड्यू टू एडिशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट और कुछ अलग प्रोजेक्ट बनने की वजह से, तो इसका प्रोलॉन्गिंग मींस ये लाइन को आपको आगे एक्सटेंड करना है यहां तक। तो यहाँ एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा इस पॉइंट पे रेड पे, और इसको साइड करते हुए ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मींस एक्सटेंशन ऑफ सर्वे लाइंस यू कैन इजिली डू। फोर्थ पॉइंट है इज फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ लेवल, कि अगर आपका वर्टिकल में अगर एंगल में होता तो पर्टिकुलर यहाँ का ऑब्जेक्ट और यहाँ से ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लेवल h, डिफरेंस इन दी मीन सी लेवल और डिफरेंस इन दी एलिवेशन, यू कैन इजिली मेजर। फिफ्थ है सेटिंग आउट ग्रेड्स। सेटिंग आउट ग्रेड्स मींस कि आपको अगर नॉर्मल जो नेचुरल ग्राउंड है उसका असेंडिंग ग्राउंड है या फिर डिसेंडिंग ग्राउंड है,
तो यू कैन इजिली फाइंड आउट। ओके, फिफ्थ हो गया। सिक्स इज रेंजिंग कर्व्स। रेंजिंग कर्व्स का मतलब, मान लो ये आपकी दो पाइपलाइन है क्रूड ऑयल की, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कराना है। मींस आपकी यहां से स्ट्रेट लाइन से पाइपलाइन आ रही थी क्रूड ऑयल की, और नेक्स्ट जो पाइपलाइन है वो भी स्ट्रेट लाइन है, बट इसके बीच में क्या है, कर्वीलिनियर ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन। तो रेंजिंग मतलब यहां से यहां तक इसको रेंज करना। बाय द हेल्प ऑफ कर्व यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो ये मोस्टली यूज होता है फॉर अलाइनमेंट ऑफ द पाइपलाइन, और अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे, और फॉर ड्राइंग द कर्व्स। जब आप हाईवे पे अगर व्हीकल चलाते हैं या फिर आप ट्रेवल करते हैं, तो सर्टेन टाइप्स के कर्व्स आते हैं। ये जो कर्व्स होते हैं इनकी सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग इनको अलाइन करना पड़ता है। मींस ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को मीट करने के लिए, रेंज करने के लिए बाय कर्व ड्रॉ करना पड़ता है। ये जो कर्व है वो वर्टिकल में भी कुछ इंक्लाइंड होता है, और हॉरिजॉन्टल में भी एक कर्वीलिनियर सरफेस होता है। यस और नो? ऐसा ऑब्जर्व किया आपने? अरे हाईवे पे तो गए होंगे ना आप कभी? ऐसा तो नहीं ना कोई अभी तक हाईवे पे नहीं गया? यस। तो मोस्टली मींस अलाइनमेंट करने के लिए आपका यूज होता है इसका, इस पर्पज में रेंजिंग जो कर्व्स के नाम है। और 7 नंबर है, इसी का थियोडोलाइट का एडवांस वर्जन है, वो है ट्रैक्योमेट्री सर्वे के अंदर। ओके, ये क्या है पर्टिकुलर, इसमें यू कैन इजिली फाइंड आउट दी डिस्टेंस। आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल लेवल भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज, अब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उससे रिलेटेड अपना वर्क। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम प्रिसाइज बैठना एकदम, मतलब अपना आपका कुछ साइड वर्क है उसके ऊपर ध्यान मत रखना। बड़ा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट रहेगा, इसको अपन ऑपरेट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने, ये क्लियर विजिबल है सबको मोबाइल स्क्रीन पे? ऐसा तो नहीं ना ये फिगर और ये फिगर, मतलब ऐसा अगर लैंडस्केप में कर दो फोन को, अगर अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में अगर दोनों फिगर्स बहुत ही साइज अगर छोटी लग रही है तो पोर्ट्रेट मोड में कर दो। क्लियर? यस सर। और फर्स्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि आफ्टर मैं इसको अगर ड्रॉ करूंगा तो सारा मिसमैनेज हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। ओके, अब आते हैं पर्टिकुलर। देखो, फर्स्ट स्टार्ट करता हूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या है, एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट करता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मींस ये इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल है या इंक्लाइंड है, या फिर सम इस एक्सिस के अबाउट कुछ एंगल है, तो इस एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। कैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, 3 ट्राइपोड्स होते हैं। जैसे कैमरामैन के पास में जब कैमरा माउंटेड करता है तो उसके पास 3 ट्राइपोड होते हैं। एक एक उसका एज यहाँ पे लगा होता है, और एक एज इसके यहाँ, और थर्ड वाला जो एज है इसके ट्राइंगल शेप से इस साइड से हेड जो है वो लगा रहता है। तो आपने शादी ब्याह में या फिर कहीं पे भी मैरिज शूट किया होगा तो पर्टिकुलर देखा होगा कि वो कैमरा माउंटेड करने के लिए ट्राइपोड लेके आता है। ओके, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ट्राइपोड है, उसका भी अलग से अपन डायग्राम देखेंगे। तो इसकी, इस इंस्ट्रूमेंट की जो वर्टिकल एक्सिस है, मींस ये वर्टिकल डायरेक्शन में परफेक्टली वर्टिकल है या फिर इंक्लाइंड है या समथिंग एरर इन वर्टिकल, तो इस एक्सिस को बोलते हैं सबसे पहला वर्टिकल एक्सिस। ओके, इसको मैं यहां से यहां तक डिनोट कर दूं, तो ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस।
यहां तक क्लियर? Yes, sir. नाउ कमिंग टू दी हॉरिजेंटल एंगल या फिर हॉरिजेंटल एक्सिस। अब हॉरिजेंटल के लिए क्या है कि अगर एक लाइन वर्टिकल में है, दैट मींस उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी उसकी हॉरिजेंटल एक्सिस या फिर हॉरिजेंटल प्लेन। ओके, तो ये जो आपको ग्रीन कलर का जो ये सर्कुलर जो डिस्क लग रही है, ये वाली जो डिस्क आपको सबको दिख रही है, ये वाली रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं। इट इज क्लियर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो रेड कलर की जो डिस्क है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, और ये सारे क्या है, इस ये मेजर करने के लिए काम आता है फॉर हॉरिजेंटल एंगल। मींस यहां से आपको देखना होता है हॉरिजेंटल एंगल, और ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस, और इस वर्टिकल एक्सिस में वर्टिकल प्लेन जो सेकंड जो डिस्क बना रहा हूं, ये बैक साइड में देखना इसकी, ये जो ग्रीन कलर की जो है, इसका अगर कलर मैं चेंज करूं तो वेल एंड गुड रहेगा, ब्लू कलर का लेता हूं। तो ये जो एक्सिस सेकंड है, ये जो डिस्क है, ये है वर्टिकल एंगल डिस्क। ओके, और by the help of this we can measure the vertical angle. Okay, now coming to the third is साइट एक्सिस और आई पीस। आई पीस मीन्स अब आपको क्या करना है, ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह रखना है, सामने की तरफ आपका है ऑब्जेक्ट जिसको साइट करना है। साइट मीन्स उसको देखना है, और देखने के लिए क्या दे रखा है आपको, टेलीस्कोप। ओके, और ये टेलीस्कोप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इंटरनल इसकी फोकसिंग कैसे करते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, और इसका आई पीस मीन्स जहां आपकी आई साइट रखनी है। ओके, तो यहां से आपको देखना है, और ये जो आपकी रेज जो है, ये रेज आती है इसके बाहर से होते हुए ऑब्जेक्ट की ओर। मीन्स अब आपको इसको किसकी तरफ रखना है, ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर लेंस है तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका आगे वाला पोर्शन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, और ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है आपका आई पीस। मीन्स अपनी आई साइट को यहाँ पे रखो और ऑब्जेक्ट की तरफ साइड करो, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। अगर क्लियर विजिबल नहीं है तो यू कैन फोकसिंग बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू एंड sight the object in a particular direction. ओके, तो यहां से इस फिगर को देखना, ये जो फिगर है वो थोड़ा इसका अपोजिट फिगर है। मींस आई साइड यहाँ पे है, और आपको इसकी तरफ साइड करना है ऑब्जेक्ट की तरफ। ओके, ये है आपकी, ये इसमें परफेक्टली जो वर्टिकल है वो वर्टिकल एक्सिस, और ये जो हॉरिजेंटल जो डिस्क है ये आपका हॉरिजेंटल सर्कल, जहां पे डायमेंशन ग्रेजुएटेड जो सर्किल जो बता रहा था, यहाँ पे आपके डिग्री मिनट और सेकंड कोई भी लीस्ट काउंट जो है वो मेंशन कर रखा होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एंगल डिस्क और वर्टिकल सर्कल, देयर इज एक्सिस इज कॉल्ड दी, ये जो मैं ब्लू डॉट कर रहा हूं या फिर रेड डॉट ज्यादा विजिबल होगा, ये जो रेड डॉट है इसके परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करनी ये लाइन। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहां तक क्लियर सब कुछ? Yes. किसी को डाउट? यूट्यूब पे जाना, इसका थोडोलाइट का ना बिल्कुल एक्सपेरिमेंट, ये बहुत सारे वीडियो जो है हाउ टू ऑपरेट थोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट और पर्टिकुलर मेजरमेंट कैसे करते हैं फील्ड पे, उसको वहां पे जाके देखोगे तो हर एक पार्ट्स के बारे में पता चलेगा। ओके, तो अभी तक तो यहाँ पे अपन कहां तक पहुंचे कि वर्टिकल एक्सिस होगी जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सके, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है।
और अगर आपको साइट करना है मींस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ये आईपीस है, आईपीस के बाद में ये ऑब्जेक्टिव लेंस सामने की तरफ, और इसको फोकसिंग करने के लिए स्क्रू भी दे रखा होता है, और हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो मेजर होता है यहां से, इसके ऊपर लेंस लगा रहता है मैग्नीफायर, जिससे इसकी जो मेजरमेंट है इस तरह मेजरमेंट होगा, तो ये जो मेजरमेंट है एंगल का वो आपको क्लियर विजिबल हो जाए। ओके, अब आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, यहां तक क्लियर? Yes, sir. ओके, अब आते हैं इसका सर वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। हेलो सर। ओके सर आपकी वॉइस लैग कर रही है बार बार, मतलब लास्ट आपने टेलीस्कोप का कुछ भी बताया, कुछ नहीं सुना अभी। सबको लैग कर रही है या फिर पर्टिकुलर आपको ही? नहीं सर, सबके साथ नहीं सर, Yes, सबको sir. हो रही सबको है। लग रही ओके, ओके, नाउ इट क्लियर ऑडिबल ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इससे पहले वाले में कहाँ पे मतलब लैग किया कम? ये वाला जो डायग्राम हो गया वो क्लियर हो गया था या नेक्स्ट था? ये सर, हाँ सर, टेलीस्कोप जैसे बताया आपने उसके बाद में कुछ नहीं सुना, मतलब Okay. टेलीस्कोप के बाद रिपीट कर दीजिए। तो ये पर्टिकुलर आपको जो ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर जो अपना लाइन ऑफ साइट जो है वो कहां से स्टार्ट होती है कि आई पीस मीन्स जहां से आपको देखना है और सामने की तरफ कौन सा है ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको देखने के लिए पूरा जो अरेंजमेंट है वो है टेलीस्कोप। ओके, तो ये जो टेलीस्कोप है ये माउंटेड मीन्स इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। ओके, तो दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये टेलीस्कोप पूरा, ये टेलीस्कोप क्या मूवमेंट कर सकता है? वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन में ये मूवमेंट कर सकता है। तो अगर ये मूवमेंट 180 डिग्री हो, दैट मीन्स ये आपका आई पीस वापिस अपोजिट एंड पे यहां पे आ जाए और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो यहां पे आ जाए। मीन्स ये अगर डायग्राम यहां पे है तो इसका वापस रिवर्स डायग्राम होगा ऐसा कि ये हो जाएगा आई पीस और ये आपका ऑब्जेक्टिव। मीन्स इसका टेलीस्कोप का रोटेशन होना, अगर ये रोटेशन 180 डिग्री होता है तो इस पर्टिकुलर रोटेशन और इस टाइप के जो थोडलाइट है उसको बोलते हैं ट्रांजिट थोडलाइट, ट्रांजिट थोडलाइट। ओके, और rotation of the telescope are restricted, is not rotate to the 180 degree, it's something like कि ये इतना सा रोटेट कर सकता है। दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका टोटल ये टेलीस्कोप, और वापस जो रोटेशन है ये मे बी 90 डिग्री 120 डिग्री, बट इट कैन नॉट अपोजिट टू दी आई पीस और ओरिएंटेशन। मींस आपका फर्स्ट ओरिएंटेशन मींस यहाँ पे आपकी आई साइट है, आई पीस जो है आप देख रहे हो, और सामने की तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये पूरा रोटेट होके अपोजिट एंड पे आ जाए, मतलब 180 डिग्री आए तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट थोडलाइट। और ये अगर क्लियर जो रोटेशन है ये नहीं अवेलेबल हो तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थोडलाइट। ओके, और नाउ इट इज ये जो है वो एब्सोल्यूट है, मींस
अब ये जो नॉन जो ट्रांजिट जो थ्रोटलाइट है ये ज्यादा मोस्टली वाइडली यूज नहीं होता है, ट्रांजिट जो थ्रोटलाइट है वो ज्यादा मोस्टली यूज होता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब आते हैं इसका लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम मींस पर्टिकुलर हर इसका पार्ट जो है वो कैसे बना है और कैसे किससे कनेक्टेड है और कितने टाइप्स के पार्ट जो है वो किस एडजस्टमेंट के लिए काम आते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबरिंग याद रखना, यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग दे रखा है, ये आपका है पर्टिकुलर क्या, टेलीस्कोप, जो कि ये मैं डिनोट कर रहा हूं। ये आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, सेम फिगर आपको अपने मोबाइल में ओपन करना है और उनके नंबरिंग देना है और उनके बारे में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है आपका टेलीस्कोप। ओके, तो टेलीस्कोप किससे बना होता है? तो बहुत सारे, इसमें सबसे पहला आईपीस भी है इसके अंदर, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आईपीस है, उसके बाद में इसके सामने ऑब्जेक्टिव लेंस है, इंटरनल इसको फोकसिंग करने के लिए फोकसिंग लेंस यूज होता है, डबल कॉनकेव टाइप का लेंस यूज होता है। फिर बाय द हेल्प ऑफ द स्क्रूइंग और एडजस्टमेंट फोकसिंग स्क्रू से ना आप एडजस्ट कर सकते हो। आपने टेलीस्कोप जब यूज किया होगा अपने आप में किसी ने भी, तो अगर सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर क्लियर इमेज नहीं बन रही तो एज पर योर आई साइट और फोकसिंग स्क्रू से सामने जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर क्या हो, आपके आई साइट आईपीस जो लेंस है वहां पे क्लियर इमेज हो। ओके, तो फर्स्ट जो है वो दे रखा है आपका क्या, टेलीस्कोप। यहां तक क्लियर? नाउ पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट इज अबाउट द टर्नियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। टर्नियन एक्सिस क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस ये आपका इंस्ट्रूमेंट इस एक्सिस के अबाउट ट्रांजिट हो सके, कौन सा, टेलीस्कोप। तो इस पॉइंट से सामने अपोजिट जो पॉइंट है उसको जो लाइन मिलाने वाली जो लाइन है, मींस ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं टर्नियन एक्सिस, जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट कर सके इन वर्टिकल प्लेन। ओके, वर्टिकल प्लेन, ये वाला जो फिगर है उसमें मैंने बता रखा है, ये है आपका वर्टिकल प्लेन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब अगर मैं ये पोर्शन अगर पूरा कट कर देता हूं ना, ऊपर वाला पोर्शन, तो इट इज द सेम लाइक द कंपास। अब कंपास में ध्यान से देखना, अब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हो ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल एंगल। ओके, बट बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर जो वर्टिकल जो सर्कल है, यू कैन आल्सो मेजर वर्टिकल एंगल। ओके, तो इस प्लेन को बोलते हैं वर्टिकल प्लेन और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो सेकंड जो पॉइंट है वो है टर्नियन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसके अबाउट आपका ये जो टेलीस्कोप है वो ट्रांजिट कर सके। ट्रांजिट अभी जो वर्ड बताया था मींस रोटेट कर सके, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इट मे बी 360 रोटेशन, मींस ये आईपीस वापस आपको ऐसे पूरा रोटेट करके वापस आ जाता है इसमें। ओके, यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, now coming to the third point is a vernier frame. थर्ड पॉइंट जो है वो है वर्नियर फ्रेम। अब वर्नियर फ्रेम क्या होता है? ये जो 3 नंबर है ये है वर्नियर फ्रेम, मींस इसके अपोजिट साइड में क्या है, एक आपके वर्नियर फ्रेम लगी हुई है, उसके अंदर इस टाइप से 2 वर्नियर लगा हुआ है, और ये पूरा वर्नियर जो है वो एक इंडेक्स मार्क या टी जो फ्रेम है उस पे माउंटेड है। यहाँ पे क्या आपके वर्नियर, इसका नेक्स्ट मैं फिगर बता दूंगा आपको। वर्नियर सी, इसको बोलते हैं वर्नियर सी और वर्नियर डी। ओके, तो इस वाले फिगर में ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट है वर्नियर फ्रेम। ओके, नाउ कमिंग टू दी 4 नंबर है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल अभी बताया था ये वाला, जहां पे ग्रेजुएशन, ये जो ग्रेजुएटेड एंगल जो है वो मार्किंग कर रखी है, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल
आएगा तो 90 डिग्री, फिर इसके अपोजिट वापस में 0 डिग्री, फिर वापस 90 डिग्री। ओके, तो ये इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। इसमें कहां है वर्टिकल सर्कल? वन, ये ग्रीन वाला जो डायग्राम है वो इट माइट बी इनसाइड ऑफ दिस डिस्क। ये है आपका वर्टिकल सर्कल। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर? 4 नंबर आपका है वर्टिकल सर्कल। यहां तक क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू दी फिफ्थ जो है वो है प्लेट लेवल। ये क्या है? बबल लेवल होते हैं। बबल लेवल मीन्स आप क्या करो, एक ट्यूब लो, उसके अंदर इसके अंदर वाटर या फिर अल्कोहल इसके अंदर इंसर्ट करो जो कम विस्कस हो, जिसकी विस्कोसिटी कम हो, और इसका यूज होता है फॉर द लेवलिंग पर्पज। आपने कहीं पे होम, जहां पे घर पे या कहीं पे देखा होगा, तो इसके साथ में एक बबल मींस एयर गैप होता है, और ये जो एयर गैप है अगर ये हल्का सा इस साइड में अगर माउंटेड हुआ तो एयर गैप जो है वो इस साइड में आ जाता है। दैट मीन्स आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इंक्लाइंड है। तो फॉर चेकिंग द लेवल मीन्स इंस्ट्रूमेंट का लेवल जो है, लेवल मतलब क्या ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या फिर वर्टिकल माउंटेड, जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग है, उसको चेक करने के लिए यूज होता है प्लेट लेवल। ओके, ये इनसाइड जो ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका प्लेट लेवल। I'm seeing the another figure of the theodolite of 3-dimensional, you can easily see. Not here. Here also not here. इस वाले फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके एक बार ट्राई करना, थोड़ा यूट्यूब पे जाके एक बार वीडियो जरूर देखना। आज के लेक्चर के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये जो पोर्शन है ना, ये है पोर्शन इसका प्लेट लेवल। ये जो पोर्शन अभी हिडन है इसके साइड में, यहाँ पे क्या है, ग्लास की ट्यूब्स है, उसके अंदर वाटर जो भरा हुआ है और एयर बबल है, और फॉर चेकिंग दी लेवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लेवल है इंस्ट्रूमेंट का वो चेक करने के लिए होता है। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 5 नंबर अपन ने कवर कर लिया। ओके, नाउ कमिंग टू दी 6 नंबर। 6 नंबर इज स्टैंडर्ड, या फिर इसको बोलते हैं ए फ्रेम। स्टैंडर्ड और ए फ्रेम है ये आपकी, अगर आप मेरे रेड मार्क को जो नोट करोगे तो ये अल्फाबेट ए की तरह है। यस और नो? Yes, ये sir. वाली जो Yes, sir. ये जो प्लेट है, ध्यान से देखो, देखो अल्फाबेट ए की तरह है। अगर मैं वापिस एक बार दिखाऊं, मार्क नहीं करूं और जस्ट विजिबल कराऊं आपको, तो यहां से देखो, यहां से अगर स्टार्ट करूं, ये यहां पे आया और इसको अपोजिट एंड लेके गया और इसको यहां से, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या फिर ए फ्रेम। और ये क्या वर्क करता है कि स्टैंडर्ड और ए फ्रेम जो है, ये जो सारा अरेंजमेंट, टेलीस्कोप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टर्नियन एक्सिस, वर्टिकल सर्कल और वर्नियर, ये सबको क्या करता है, माउंटेन मींस इसको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, वहां पे पोजीशन ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक डेड पार्ट है। और ये ए फ्रेम में है पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ओके, यहां तक क्लियर? Yes, sir. Now coming to the point 7. 7 is a upper plate.
अपर प्लेट का मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो आपका फॉर द मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल वी हैव द टू प्लेट्स और टू लेवल, वन इज अपर लेवल एंड सेकंड इज लोअर लेवल। ओके, तो ये जो पार्ट है ये वाला यहाँ पे इतना, जहां पे वर्नियर जो है वो लाई करता है, यहाँ पे क्या करता है वर्नियर अपर प्लेट पे, मींस ए जो फ्रेम है या फिर स्टैंडर्ड जो फ्रेम है वो डायरेक्टली माउंटेड ऑन दी अपर प्लेट। ओके, तो इस पोर्शन को कहते हैं 7 जो नंबर पॉइंट है वो है अपर प्लेट, और ये जो अपर प्लेट है वो इसके साथ कनेक्ट होती है इसके स्पेंडल के अंदर। ओके, तो 7 नंबर जो है वो है अपर प्लेट। नाउ कमिंग टू डी, इसके जस्ट नीचे जो लोअर प्लेट होगी, तो अपर प्लेट पे याद रखना वर्नियर स्केल होता है, और लोअर जो प्लेट है उस पे मैन स्केल जो सर्कल जो है वो लाई करता है। तो 8 नंबर जो है वो है आपकी लोअर प्लेट, और 7 नंबर जो है वो है अपर प्लेट। अपर प्लेट डायरेक्टली माउंटेड होती है लोअर प्लेट से, और ये जो कनेक्ट है वो इसको बोलते हैं एक तो स्पाइंडल, और स्पाइंडल 2 टाइप्स के डिपेंडिंग अपॉन दी प्लेट। ओके, तो 8 नंबर इज कवर लोअर प्लेट। नाउ कमिंग टू दी 9 का है ये इनर एक्सिस। इनर एक्सिस मींस इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए जो एक्सिस है, ये वर्टिकल जो एक्सिस है इसको बोलते हैं इनर एक्सिस। 9 नंबर जिसके अबाउट ये दोनों प्लेट जो है वो रोटेट कर सके। ओके, यहां तक क्लियर? यस सर। ये सारी जो है, ये जो सारी फीचर्स है ये हिडन है, मींस इस वाले जो अरेंजमेंट है इसमें नहीं दिख रही, इसके अंदर लाइन डायग्राम है इसलिए ड्रॉ किया है ताकि इसकी मैकेनिज्म आप समझ सको, और ये जो हिडन जो पार्ट्स हैं थोड़ोलाइट के वो समझ सको। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, कमिंग टू दी 10 नंबर इज आउटर स्पाइंडल। तो आउटर स्पाइंडल मींस ये जो लोअर प्लेट है वो जिसके ऊपर सपोर्टेड हो उसको बोलते हैं आउटर स्पाइंडल। ओके, और इसी की तरह अपर जो प्लेट है वो डायरेक्टली जिसके ऊपर सपोर्टेड हो माउंटेड हो वो है इनर स्पाइंडल। सिंपल। आउटर स्पाइंडल यूज फॉर दी पोजिशन और माउंटेड ऑन दी फॉर सपोर्टिंग दी लोअर प्लेट, और इनर स्पाइंडल फॉर दी अपर प्लेट। ओके, और ये दोनों आपस में क्या है, इनर एक्सिस के अबाउट कैन बी रोटेट। यहां तक क्लियर? इट इज क्लियर? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, आई कैन आल्सो एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक इसका पार्ट जब तक नहीं पता होगा, यू कैन नॉट मेजर प्रिसाइजली ए हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। इसका 1 बाय 1 में और ज्यादा अपन डीप में पढ़ेंगे। टेलीस्कोप कितने हैं, टर्नियन एक्सिस क्या होती है, वर्नियर जो फ्रेम है वो क्या है। अभी जो है इसका क्या है, अपने डिसमेंटल किया है इसको, पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पर्टिकुलर लाइन डायग्राम में। क्लियर यहां तक पृथ्वी, वीरेंद्र? यस सर। ओके, यस सर। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट 12 पॉइंट है एल्टीट्यूड बबल। एल्टीट्यूड बबल मींस ये क्या है, कुछ माउंटेड है एक हायर लेवल पे, वो लेवल है ये वाला। मींस यहाँ पे जो मैंने बताया था बबल लेवल, एक तो यूज करते हैं प्लेट के ऊपर, अगर लेवल अगर लगाते हैं उसको बोलते हैं प्लेट लेवल। और एल्टीट्यूड के लिए मींस आपको वर्टिकलिटी देखना है कि हॉरिजॉन्टल ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्टली वर्टिकल है या नहीं। तो यहाँ पे एक और वापिस साइड में क्या लगाते हैं, बबल ट्यूब। इसके साइड में ये है, मींस ये वर्टिकल एक्सिस, सॉरी ये वर्टिकल जो डिस्क है इसके जस्ट पास में जो है ये वर्टिकल डिस्क, और इसके जस्ट पास में क्या था, ये जो फ्रेम जो है 14 नंबर क्लिप स्क्रू, और ये जो फ्रेम है 3 नंबर वो है इसका वर्नियर फ्रेम। वर्नियर फ्रेम के जस्ट इसके ऊपर माउंटेड होता है क्या, एल्टीट्यूड बबल। एल्टीट्यूड बबल या फिर लेवल।
Okay, now coming to the 13 number point. 13 number point is a leveling screw. लेवलिंग स्क्रू है ये वाले जो ब्लैक कलर के आपको देख रहे हैं, लेवलिंग स्क्रू। इसमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलर तीनों ट्राइपोड पे बने रहते हैं। तीन जो एंगुलर जो शेप है इसमें जो ये बना होता है, और बाय द हेल्प ऑफ दिस लेवलिंग स्क्रू यू कैन एडजस्टमेंट ऑफ द योर थोडालाइट इंस्ट्रूमेंट इन अ वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में यू कैन इजिली बाय द हेल्प ऑफ दिस लेवलिंग स्क्रू। अब इसको लेवलिंग स्क्रू का एक मैकेनिज्म होता है, कैसे आप इन तीनों स्क्रू को किस तरह जो इंस्ट्रूमेंट है उसको साइड या फिर किस तरह इस इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली वर्टिकल बना सकते हो। तो ये जो 13 नंबर जो यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैक कलर के, ये जो ब्लैक कलर के यहाँ से क्लियर विजिबल होगा आपको, इसको बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू। ओके, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. नाउ 14 नंबर। 14 नंबर इज अ क्लिप स्क्रू। क्लिप स्क्रू ये रहा, क्लिप स्क्रू। इसका ये जो लाइन डायग्राम, एक असाइनमेंट दूंगा आज ही, इसका पूरा जो लाइन डायग्राम है वो आप नोटबुक में ड्रॉ करके और विथ पार्ट्स और विथ ये जो नंबरिंग है वो ड्रॉ करके आपको सेंड करना है मुझे। ओके, तो क्लिप स्क्रू जो है वो काम आता है फॉर दी स्लाइटली एडजस्टमेंट ऑफ दी दिस पर्टिकुलर वर्नियर फ्रेम और टेंजाइल स्क्रू फॉर दी पर्टिकुलर वर्नियर फ्रेम। इसके बारे में और ज्यादा अपन आगे पढ़ेंगे। 15 नंबर, नाउ कमिंग टू दी 15 नंबर। 15 नंबर है आपका हुक। हुक लगा रहता है यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे, ये जो हल्का सा जो लग रहा है वो इस टाइप से लगा रहा है हुक। इस वाले हुक में क्या अपन इंसर्ट करते हैं? प्लम बॉब। प्लम बॉब क्या होता है? एक स्ट्रिंग मीन धागा होता है और उसके नीचे जो है वो एक सर्टेन वेट इंसर्ट करते हैं ताकि परफेक्टली वर्टिकल एक्सिस पता चले। किसी भी प्लेन के ऊपर अगर आपको परफेक्टली वर्टिकल एक्सिस निकालना है, कुछ नहीं करना है, एक धागा लेना है और नीचे की तरफ कुछ भी पत्थर या फिर बोल्ट्स जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो उसको वहां से ऐड ऑन कर दो और यहां से आप इसको माउंटेन करो, तो आपको पता चलेगा ये क्या है, परफेक्टली वर्टिकल। तो ये कब लगाए जाते हैं? जब सर आवाज नहीं आ रही है। सिक्सटी नंबर टाइप ब्रेच। ये जो लेवलिंग जो स्क्रू है sir, you are इसका not ऊपर audible, हेड। sir. Now? आवाज ही नहीं आ रही। Okay. Sir, in the Hello, middle, sir. you are not audible. Now I am clear audible. Sir, you are audible, but just like in between the explanation, we lost somewhere your voice totally, and then after we got again. Okay, okay. ये प्रॉब्लम अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, उससे पहले भी थी? Sir, it just happened 3 times. ओके, एक्चुअल में जो मोबाइल पे अगर समवन अगर कॉलिंग अगर मेरे को करते हैं तो नॉर्मली डेटा जो है वो लॉस्ट होता है, मींस नेटवर्क जो है उस पर्टिकुलर सिम से नहीं आएगा ना, दैट्स व्हाई आई एम। तो ये अभी मेरे को लास्ट बता दो कहां तक था मैं? हुक्स के बारे में वेरी वेल नो, Plum bob as Sir, still हाँ. कर रहे थे. मींस Sir, 15 नंबर उसके जो बाद ये पॉइंट है, direct हाँ ट्राई ब्रेच। वो रिपीट कर दो सर। ओके, तो हुक्स का मींस, हुक्स का मतलब मैंने बताया था आपको कि फॉर फाइंडिंग आउट द परफेक्टली वर्टिकलिटी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट वी आर ऐड ऑन द प्लम बॉब। इसके साथ में क्या ऐड करते हैं?
प्लम बॉब क्या होता है, नॉर्मली एक धागा जिसमें स्ट्रिंग जो है वो यूज होती है, एक पर्टिकुलर डेड वेट यूज कर लो और उसको माउंटेड करो हुक से, तो आपको परफेक्टली वर्टिकल एक्सिस पता चल जाती है। और नाउ कमिंग टू दी 16 नंबर जो पॉइंट है वो है ट्राई ब्रेच। ये क्या है ट्राई ब्रेच, कि पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसके ऊपर माउंटेड होता है और ये डायरेक्टली सपोर्टेड होता है किसके ऊपर, लेवलिंग स्क्रू। ये जो अभी ये जो ट्राइपोड, ये ट्राइंगुलर जो शेप है इस टाइप की, इसको बोलते हैं ट्राई ब्रेच। और ये डायरेक्टली किस पे सपोर्टेड होता है, लेवलिंग स्क्रू पे। और लेवलिंग स्क्रू यहाँ पे थ्री टाइप के, ये टोटल कितने नंबर ऑफ लेवलिंग स्क्रू है, वो 3। इस वाले डायग्राम में ओनली फॉर 2D डायग्राम है तो 2 आपको ओनली फॉर 2 प्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ये जो 2, एक यहाँ पे हो गए, एक जस्ट इसके बैक साइड में। 3 तरह से ये लेवलिंग स्क्रू होता है। ओके, नाउ कमिंग टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू फॉर मेजरमेंट। फर्स्ट इज वर्टिकल क्लैम स्क्रू। वर्टिकल क्लैम स्क्रू 17 नंबर दिस वन। और यहाँ पे इसमें फिगर में बताऊं तो ये रहा आपका वर्टिकल क्लैम स्क्रू 17 नंबर। वर्टिकल क्लैम स्क्रू का मतलब है आपका जो टेलीस्कोप जो रोटेशन है, अगर इसको रोटेशन को बंद करना है या फिर कहीं पे फ्रीज करना है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू यू डायरेक्टली फ्रीज द मूवमेंट ऑफ द टेलीस्कोप। ओके, और ये जो मूवमेंट है उसको कैसे फ्रीज करोगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। तो आपको एक बार आपको इसको टाइट कर दो और उसके बाद में प्रिसाइज अगर आपको करना है, कैसे, अगर आपने मान लो ये पर्टिकुलर ये 0 डिग्री था और ये वर्नियर, ओके, और वर्नियर स्टार्ट है आपका 0 डिग्री यहां से, और ये है आपका 5 Again, sir, same problem. कर रहे हो तो वो वर्क ही नहीं करेगा। ओके, क्लियर यहां तक? Hello, sir. We had lost your voice again. सर वॉइस क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में 11:30 पे आपके सीनियर्स जो है इसमें सीबी No, sir. Okay, now I am audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Sir, you Yes, are sir. audible. Okay, okay, So I think we just okay. तो ये जो बाकी, ओके थैंक यू, बाकी वाला जो पोर्शन है वो टुमारो जो क्लास होगी उसमें अपन कवर करेंगे। मैं शेड्यूल बता दूंगा। आई हैव अर्जेंट वर्क। ओके, Okay, sir, no problem. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir.